امن کے لیے پاکستان کی بھرپور سفارتکاری، وزیر اعظم کا اہم بیرونی دورہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عربیہ سے 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ قطر کی حدود میں داخل ہوتے ہی لڑاکا طیاروں کی سلامی۔ قطری وزیر مملکت سلطان بن سعد نے پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے ملاقات۔ خلیج سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی قطر اور دیگر ملکوں پر حملوں کی مذمت، عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان اور قطر کا سیکیورٹی، دفاع اور توانائی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور خلیجی ملکوں کے درینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا، امریکہ ایران مذاکرات آگے بڑھنے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ تہران۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف سے ملاقات ہوئی۔ گزشتہ روز فیلڈ مارشل کے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ عباس عراقچی کا پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر۔ کہا، خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے سے متعلق عزم مضبوط اور مشترک ہے۔ یہ ہمارے گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کا مظہر ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں پائیدار امن کی کوششیں۔ امریکی صدر بھی معترف۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستانی قیادت کو ایک بار پھر خراج تحسین۔ فاکس بزنس نیٹ ورک کے پروگرام میں کہا، پاکستانی قیادت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سنجیدہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے شکر گزار ہیں۔ ٹرمپ مزید کہتے ہیں، لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ ایران سے معاہدہ زیادہ بہتر آپشن ہے۔ تہران کو تعمیر نو کا موقع ملے گا۔ ایران کے حملوں پر خلیجی ملکوں کو شدید دھچکا لگا۔ 1 گھنٹے میں ایران نے معاہدہ نہ کیا تو امریکہ حملوں کے لیے تیار ہے۔ ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی دھمکیاں۔ کہا، ایران کو اپنے اگلے اقدامات دانش مندی سے کرنے چاہیے۔ اگر ایران نے غلط فیصلہ کیا تو ناکہ بندی اور بنیادی ڈھانچے، توانائی اور بجلی کے نظام پر حملے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ آبِ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ایران کے پاس نیوی نہیں، بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا قذافی اور بحری دہشت گردی ہے۔ بحری راستوں کی بندش ایران جانے والے تمام جہازوں کے لیے ہے۔ ایران جنگ اور عدم استحکام نہیں جاتا۔ صدر مسعود پزشکیان کے ہلال احمر سوسائٹی کے دورے میں بات چیت۔ کہا، ایران نے ہمیشہ دیگر ملکوں کے ساتھ مکالمے اور تعمیری روابط پر زور دیا۔ ایران کو دہشت گرد کہنے والے خود دہشت گرد ہیں جو جب چاہیں جہاں چاہیں کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ایران کی شہری تنصیبات، اسکولوں اور اسپتالوں پر حملوں کا بین الاقوامی قانون اور انسانی اصولوں کے تحت کوئی جواز نہیں۔ یہ حملے شرمناک ہیں اور دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے ایران کی بحری ناکہ بندی جاری۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل جین کین کہتے ہیں، ایران پر بحری ناکہ بندی کے آغاز کے بعد 13 جہازوں نے واپس مڑنے کا فیصلہ کیا۔ جو بھی جہاز ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرے گا اس سے مناسب طریقے سے نپٹا جائے گا۔ ایران کی مدد کرنے والے ہر جہاز کا پیچھا کریں گے۔ امریکی فوج ایک لمحے کے نوٹس پر دوبارہ جنگی کارروائیاں شروع کر سکتی ہے۔ سینچکام نے کہا، ایک بھی ایرانی جہاز آبِ ہرمز سے نہیں گزر سکا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ناکہ بندی کے باوجود ایرانی ٹینکر آبِ ہرمز سے گزرا۔ ایرانی فوج نے ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ امریکی ناکہ بندی پر مناسب جواب دینے کی دھمکی۔ مشرق وسطی میں قیام امن کمیشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات میں پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ سعودی ولی عہد کے امن عمل پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کے لیے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی، ملک و قوم کے لیے دعائیں کی۔ وزیر اعظم کی آمد پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھولے گئے۔
पाकिस्तान की मैशियत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरेबिया से मौसूल $2 अरब। सऊदी अरब से $2 अरब की रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल की गई। $2 अरब मिलने से मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी का खतरा टल गया। पाकिस्तान को रवां माही यूएई को $3.5 अरब की अदायगी करनी है। यूएई ने अपने डॉलर डिपॉजिट रोल ओवर करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने रवां माही यूरो बॉन्ड मेचोरिटी की मद में भी $1.2 अरब अदा किए थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने यूएई को रकम वापस करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका की जंग बंदी मुमकिन हुई। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग का पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। आलमी क़यादत ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात कराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म इस वक्त 3 मुल्की दौरों पर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात की। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने कहा है अमेरिका को लेबनान समेत जंगबंदी के मुआहदे की पाबंदी करना होगी। लेबनान में जामिया जंगबंदी की तकमील हिजबुल्लाह की साबित कदम जिद्दोजहद पर मुनहसर है जो ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम है। ईरान और महवरे मज़ाहमत तंजीमें एक ही रूह की मानंद है, चाहे जंग हो या जंगबंदी। अमेरिका को इसराइल फर्स्ट की गलती से पीछे हट जाना चाहिए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल WTI $93 फी बैरल में फरोख्त हुआ। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल के $98 फी बैरल में सौदे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1392 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,69,911 पॉइंट्स पर बंद हुई। पाकिस्तान ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी इकदाम किए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर संजीदा कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा गैस और पेट्रोल की सप्लाई चेन बहाल रखने के लिए इकदाम कर रहे हैं। खित्ते में कशीदगी के बायस सप्लाई चेन मुतासिर हुई। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारी मुस्तहकम है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाहौर के बेशतर इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में बिजली की वोल्टेज कम और ज़्यादा होने की भी शिकायत। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। बिजली की पैदावार 14,274 और तलब 20,000 मेगावाट है। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम और कारोबारी तबके को शदीद मुश्किलात। शहरी कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग ने मामलाती ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और हम तो भाई अपीलें कर करके थक गए हैं। अभी तक जो ना कोई सुनवाई नहीं होती है। जो शेड्यूल बताया तो उस पर तो अमल दरामद हो ही नहीं रहा है। अभी गर्मी आ गई है, बिजली न होने के बराबर है। यहाँ तो ये हाल हो रहा है कि रात को अगर 12 बजे आती है तो वो सुबह तकरीबन 6 बजे आ रही है। खत्ते की सूरत हाल के बायस बिजली की लोड शेडिंग का सामना है। 1 अप्रैल के बाद बैरून मुल्क से LNG आना बंद हुई। गैस न आने की वजह से पावर प्लांट नहीं चल रहे। वजीर तवानाई अवैस लखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर माजरत ख्वाह हैं। पीक आवर्स में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। पन बिजली की पैदावार में 1530 मेगावाट कमी का सामना है। डैम से पानी के कम अखराज के बायस पन बिजली की पैदावार 1674 मेगावाट है। हमने हमेशा पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला। दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान की सूरत हाल काफी बेहतर है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए सेंट्रल इरिगेशन का तोहफा। जदीद सिस्टम के जरिए 1500 एकड़ अराजी को काबिल काश्त बनाया गया। पाकिस्तान सऊदी अरब ट्रिप लॉन्चिंग ग्रीन इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब। सऊदी नायब वज़ीर ज़राअत का तकरीब से खिताब। कहा ज़राअत की अहमियत को समझते हैं। ग्रीन इनिशिएटिव मुश्तरका मकासद में शामिल है। ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब में फास्ट ट्रेन और 8 लोकल रूट्स पर जदीद ट्रेनें चलाई जाएंगी।
पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए अहद का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी ने MOU पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत पंजाब इलाकाई रूट्स पर जदीद तरीन DMU ट्रेन मुहैया करेगी। लाहौर से रावलपिंडी पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन 2.25 घंटे में सफर तय करेगी। शाहदरा से नारोवाल और नारोवाल से सियालकोट रूट पर ट्रेन चलेगी। रायविंड कसूर पाकपतन से लोधरा तक नई ट्रेन चलेगी। शेखपुरा जड़ांवाला शोरकोट रोड पर भी ट्रेन चलेगी। लाला मूसा सरगोदा रूट पर भी नई ट्रेन चलेगी। फैसलाबाद चक झुमरा शाहीनाबाद और कोट अद्दू लीची खान कश्मोर रूट्स भी शामिल। पंजाब के 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें फ्राहम करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी इजलास हुआ। सूबे में जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम के फ़रोग़ के लिए अहम फैसले। हर डिवीज़न में इलेक्ट्रो बसों के लिए खुसूसी बस डिपो भी कायम होगा। वज़ीर आला ने तहसील सतह पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए जामे प्लान भी तलब किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मेट्रो बस स्टेशन की तामीर मरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में सरकारी मुलाज़मीन के लिए बाइक प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने एंटी इंक्रूचमेंट फोर्स के भर्ती कवायद की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा वसाइल की कमी नहीं है, कमज़ोर रिकवरी निज़ाम असल मसला है। सिंध बैंक की ट्रेड फाइनेंस सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। मेहनत कशों के हकूक़ की पासदारी करते हुए कानूनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। सिंध काबीना का कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिटी मिडवाइफ वर्कर्स की तनख्वाहें जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का मार्केट कमेटियों को पेंशन और रिटायरमेंट मुराद की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। तौंसा में एड्स के मरीजों का मामला गुज़श्ता बरस सामने आया। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने केसेस की निशानदही और 50,000 से ज़ायद अफराद की स्क्रीनिंग की। बरतानवी नशरियाती इदारे ने उस वक्त केसेस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? पंजाब के वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं 1 साल गुजरने पर मामला ख़त्म हो चुका तो रिपोर्ट लाने की क्या ज़रूरत थी? रिपोर्ट में कहा गया कि THU तौंसा में सर्जन्स का दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, जबकि वो डब्बा भी दिखाया गया जिसमें सुरंज को डिस्पोज किया जाता है। किसी अस्पताल में रज़ाकार नहीं मगर वो दिखाए गए। तहकीकात में रिपोर्ट गलत निकली तो बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। इस्लामाबाद की हदूद से अब एक दरख्त भी कटा तो तौहीन अदालत तस्वुर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कटाई के खिलाफ केस में बड़ा हुक्म। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने दरख्तों की कटाई के खिलाफ केस की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए जिस शहर में हम रहते हैं चाहते हैं यह खूबसूरत रहे। अगली पेशी पर मुस्तनद माहौलियाती माहिर तलब। आज़ाद कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इरफान नामी रॉ के एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी आज़ाद जम्मू कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का रॉ का एजेंट हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। हसास मालूमात और लोकेशंस को दुश्मन तक पहुंचाया जा रहा था। एजेंट अपने मज़मूम अज़ाइम से मासूम लोगों को निशाना बनाता रहा। एजेंट के एतराफ़ी बयान की वीडियो भी दिखाई। आईजी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कहा कि दुश्मन को वाज़ेह पैगाम है कि हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार हैं।